all. I hope you're all doing good, and welcome to the new course. Rather, we are going to have the two courses together, the public policy and the business ethics. मेरी आवाज आप सब तक क्लियर आ रही है? If yes, please write on chat. Recording in progress. All right. Okay. The rule of the class would be very simple, that your mics are closed. All you need to do when you have any question, just raise your hand so that I can allow you to speak or to ask questions, so that we can go very smoothly to conduct these classes online. The second thing I would like to share you that anyone who will appear in the class without his name, and he will not be allowed. So please appear in the class with your full name that you have. आपका जो पूरा नाम है, आप कोशिश करें कि नेक्स्ट टाइम जब आप क्लास में आए ऑनलाइन तो अपने पूरे नाम के साथ और ब्रैकेट में लिख लें BS4. ये मत भूलिएगा, otherwise you would not be allowed to enter in the class. Do not appear with your mobile phone name, mobile phone number or any awkward name which we do not know. ठीक है, तो अपने नाम के साथ अपेयर हुई और अपनी क्लास का नाम अपेयर हुई, so it would be easy for you to enter in the class. I hope you understand the things. So the course we have is the public policy. जो कोर्स हमारे पास है वो है पब्लिक पॉलिसी का, यानी जो पहला सेशन हम लेंगे 8:30 बजे से 10 बजे तक वो हम पढ़ेंगे पब्लिक पॉलिसी, और उसके बाद जो दूसरा कोर्स है वो है बिजनेस एथिक्स. पब्लिक पॉलिसी का जो कोर्स है, कोर्स आउटलाइन है, वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम है एज कंपेयर टू बिजनेस एथिक्स. बिजनेस एथिक्स में तकरीबन 16 चैप्टर्स हैं और पब्लिक पॉलिसी में आई गेस के 6 या 7 चैप्टर्स हैं. ठीक है, लेकिन दोनों कोर्सेज जो हैं वो थ्योरेटिकल हैं और रीडिंग बेस्ड हैं. मैं आज आपको किताबें ईमेल कर दूंगा. कोई एक मुझे अपना ईमेल एड्रेस देगा, जो भी CR होगा उसको मैं किताब ईमेल करूंगा और वो किताबें जो हैं वो अपने तमाम जो फेलोज हैं उनको फॉरवर्ड कर देगा. इज दैट क्लियर? सो वन सिंगल पर्सन जो मुझे अपना ईमेल एड्रेस देगा उसको मैं किताबें और नोट्स या रिकॉर्डिंग जो है वो फॉरवर्ड कर दूंगा, और वो वही स्टूडेंट होगा जो मुझे अटेंडेंस लेकर देगा. तो आई नीड द अटेंडेंस शॉट एट द एंड ऑफ द क्लास, और मुझे इस सेशन के एंड में अटेंडेंस चाहिए होगी. तो जिसका नाम उस अटेंडेंस शॉट में नहीं आएगा, अगर वो आउट है तो वो एब्सेंट माना जाएगा. सो anyone who is there to volunteer as a CR, so Ikra Naz is here. Ikra, please send me your email address on my WhatsApp so that I can send you the recording. और जितनी भी आप रिकॉर्डिंग और चीज़ें भेजूंगा मैं आपको, वो आप WhatsApp पे भी अपडेट करें. जो हमारा ग्रुप है उस पर भी आप अपडेट करेंगी, जो स्लाइड्स हैं वो भी और जो रिकॉर्डिंग वो भी. ठीक है, so far this is what I want to discuss to you. Let's begin our new course. We have been together for the last 2 courses. First we had gone through the history of ideas, and in the last session we had gone through the logic. Now scenario has completely changed. We are now going to talk about something that is what we call a completely theoretical,
and completely detailed descriptive courses. However, these two courses are very much interlinked, and if you have studied or studying community development, अगर आप community development पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, तो इन तीनों का इंटरेक्शन है बहुत क्लोजली. तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको इन तीनों के साथ इंटरेक्शन करते चलना होगा ताकि बेहतर आप अपने रिस्पॉन्स दे सकें. Oh yes, I forget about the study skills. I taught you. It's good. Thank you, Zanakbal, for letting me know. शुक्रिया आपका बहुत बहुत. चलते हैं जी पब्लिक पॉलिसी की तरफ. तो लफ्ज को अगर हम डिवाइड कर दें पब्लिक और फिर हम दूसरा लफ्ज ले लें पॉलिसी, तो अगर हम जर्नली बात करें कि पब्लिक का मतलब क्या होता है, और ये वो लफ्ज है जो आप हमेशा कम से कम एक दिन में एक दफा तो आप सुनते हो. इसी तरह लफ्ज पॉलिसी को अगर हम इंडिविजुअली देखें, ये भी एक ऐसा लफ्ज है जो आप कम से कम दिन में एक दफा आपने सुना होगा, या कम से कम आपने दिन में एक दफा ये लफ्ज कहा होगा. So we had heard these words, that is public and also the policy. When we combine it, so it turns out to be something very interesting. But before we go through it as a combination, public policy, we must know what is the meaning of public. Public के मायने क्या हैं? क्या कह सकते हैं हम कि पब्लिक को डिफाइन कैसे करेंगे? Okay, Hamna is saying that public means common people. Right, इसका मतलब है कि जितने भी कॉमन पीपल हैं उनकी यहाँ बात होगी, और जो अनकॉमन पीपल हैं उनकी यहाँ पे बात नहीं. नंबर वन. Yes, who else would like to share? इकरा नाज कह रही है कि पब्लिक का मतलब है सिटीजन, यानी जितने भी शहरी हैं उनकी बात होगी, और जितनी भी नेशन है उनकी बात, कौम की बात नहीं होगी, शहरियों की बात होगी. ये इकरा नाज ने. सुमैया अशरफ कह रही है कि ग्रुप ऑफ पीपल. अच्छा, ग्रुप ऑफ पीपल को हम कहेंगे पब्लिक. तो इसका मतलब है कि सुमैया ये कह रही है कि पब्लिक का मतलब है कम्युनिटी, पब्लिक का मतलब है सोसाइटी. ये सुमैया कह रही है जी. और कोई कुछ कहेगा? Yes, many students are there. I would like that they should participate. And ये है फैजान अहमद जिन्होंने हिंदी लफ्ज इस्तेमाल किया है, जनता यानी अवाम. गुड, वेरी गुड फैजान अहमद. लग रहा है लॉकडाउन में खूब इंडियन जो इन्फ्लुएंस है वो आपके ऊपर मौजूद है, वो भी अगस्त के महीने के अंदर जबरदस्त. और कोई ऐड करना चाहेगा पब्लिक पॉलिसी के हवाले से? वो अवाम जो टैक्स पेयर हो. गुड. जो टैक्स देते हैं उसको हम कहते हैं पब्लिक, और जो टैक्स नहीं देती है उसको हम क्या कहेंगे भाई? यहाँ तक तो बात आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग है जैन, कि वो अवाम जो टैक्स पे करती हो, और जो टैक्स नहीं पे करती हो उसको हम क्या कहेंगे, ये भी सोचिएगा. और कनैन तारिक कह रही हैं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी इनफरादी लोगों का ग्रुप, उसको हम कहेंगे पब्लिक.
पब्लिक का मतलब है, पब्लिक को हम दो मायनों में यहाँ पर समझेंगे, ठीक है, इन टू वे कॉन्सेप्ट। पब्लिक का एक बुनियादी जो मतलब है वो है स्टेट, गवर्नमेंट, यानी रियासत या हुकूमत जिसमें अवाम के नुमाइंदे शामिल हों, रियासत या हुकूमत जिसमें अवाम के नुमाइंदे शामिल हों और जो मिलकर किसी म्यूचुअल टास्क पर काम करें। पब्लिक का दूसरा मतलब है अवाम, जो किसी भी स्टेट या किसी भी हुकूमत के अंडर आती हो और कोई भी स्टेट का सरबराह या कोई भी स्टेट का हुक्मरान उनको कंट्रोल करता हो, राइट? सो दैट इज अ पब्लिक। व्हाट इज अ पॉलिसी? We will leave this question over here and we'll come to know it after a few slides. So we are going to begin the first chapter, that is basic concepts, chapter number 1. आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उस पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम इस काबिल हो जाएं कि अगर हमसे कोई पूछे कोई पब्लिक पॉलिसी से आप क्या मुराद है और आपने पब्लिक पॉलिसी का कोर्स पढ़ा है तो उसका क्या मतलब है, तो आप इस काबिल हो सकें कि उनको आसान लफ्ज़ों में, आसान ज़ुबान में, आसान एग्जाम्पल देकर बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझा सकें। So in your course outline, the first chapter is basic concepts. We are going to learn now. Consider the following questions very carefully. ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको बड़े गौर से देखने, पढ़ने और फिर हम इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। सवाल ये है कि why does, for example, the government provide support for tobacco farming and discourage people from smoking? हो सकता है कभी आपने इस तरह नहीं सोचा हो, ये जरूर सोचा हो कि भाई गवर्नमेंट जो है वो सिगरेट पर पाबंदी लगाती है या उस पर टैक्स लगाती है या उनको मना करती है कि वो फैक्ट्रियां ना खोलें, ये तो आपने सुना होगा, राइट? लेकिन जितने भी काश्तकार हैं जो टोबैको को काश्त करते हैं, ठीक है, जो तंबाकू की काश्त करते हैं, फार्मिंग करते हैं, उनको मना नहीं करते। भाई होना तो क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी आवाम जो है वो तंबाकू नोशी से या सिगरेट पीने से बच जाए, तो उसका बेहतरीन हल क्या होना चाहिए? सिगरेट के जो प्रोडक्शन है, जो फैक्ट्रीज है, उसको खत्म किया जाए या जो उसकी फार्मिंग है उसको खत्म किया जाए, जड़ को खत्म किया जाए। व्हाट डू यू थिंक? ठीक है, एक्सपोर्ट के लिए फार्मिंग को वो अच्छा, इसका मतलब है कि जो आपकी जो गवर्नमेंट है या किसी मुल्क की गवर्नमेंट है वो अपने लोगों को तो भला सोचती है, लेकिन वो दूसरे मुल्क के लिए उसी चीज को जहर नहीं समझती। Isn't it a policy? Right? So the question is quite important and it needs to be answered when you think about it.
The second question we have, why does the government give people tax break for buying houses? घर आप खरीदते हैं और गवर्नमेंट जो है वो आपको घर खरीदने के मुख्तलिफ टैक्स ब्रेक देती है और टैक्स में कमी करती है ताकि आप घर खरीद सकें और फिर बाद में आपसे वही टैक्स किसी और तरीके से हासिल करती है पॉलिसी. Why is primary responsibility for the police or education held by the state, local government, not the federal government? ये जो एजुकेशन है और ये जो पुलिसिंग का डिपार्टमेंट है वो लोकल गवर्नमेंट के अंडर ज्यादा पावरफुल काम करता है एज कंपेयर टू द फेडरल गवर्नमेंट. यानी वफाक से उसकी जो चीजें हैं वो कम चलती हैं और जो लोकल गवर्नमेंट है उस पर वो ज्यादा डिपेंड करती है. जहां जहां लोकल गवर्नमेंट होती है, अनफॉर्चुनेटली हमारे लोकल गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम सूबों की गवर्नमेंट की बात करें तो वहां पर सूबों की पावर चलती है. सो व्हाई गवर्नमेंट गिव्स फ्रीडम टू द लोकल गवर्नमेंट? क्यों इख्तियारात जो हैं वो आम आवाम या लोकल गवर्नमेंट या सूबाई गवर्नमेंट तक भी दिए जाते हैं और क्यों कुछ चीजों को अपने कंट्रोल में रखा जाता है? These are the different questions as well. Is regulation of consumer product safety better for public safety, or would greater reliance on the market and information work better to promote public safety? जी, एक और सवाल ये है कि जो कंज्यूमर प्रोडक्ट की जो सेफ्टी बेटर फॉर पब्लिक सेफ्टी के लिए जो मुख्तलिफ किस्म के कैंपेन चल रही होती है और वुड ग्रेटर रिलायंस ऑन द मार्केट, तो ये मार्केट पर रिलायंस क्यों किया जाता है? क्यों गवर्नमेंट मार्केट को इस बात की इजाजत देती है कि वो पब्लिक सर्विस या पब्लिक सेफ्टी के लिए काम करे? गवर्नमेंट ये चीजें अपने हाथ में क्यों नहीं लेती, अपने कंट्रोल में क्यों नहीं लेती? You know what? By giving and sharing these questions, I would like you to think in a very different way to the answer of these questions. And the reason is that the public policies is all about for and like these questions. कि public policy के जो domain है उनका ताल्लुक इसी तरह के सवालात से है और अगर इनके जवाबात हमें मिल जाते हैं तो फिर हम ये समझने के काबिल हो जाते हैं कि पब्लिक पॉलिसी क्या है. ये चारों क्वेश्चन जो हैं ये अपने अंदर एक डिटेल्ड एनालिसिस, एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग रखते हैं और ऐसे बहुत से ऐसे सवालात हैं जिनको सोचकर हम ये समझ सकते हैं कि व्हाई इज पब्लिक पॉलिसी इम्पोर्टेंट फॉर अस टू स्टडी and how public policy can be practically applied in our society so that some of the benefits can be achieved by studying the public policy. तो ये पहला सवाल है जिसका एक जवाब मुझे ये दिया गया है कि इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जो टोबैको की जो फार्मिंग है उसको रोका नहीं जाता, और दूसरा इसका जवाब ये है कि क्योंकि पब्लिक की सेफ्टी के लिए काम किया जाता है तो इसलिए पब्लिक को बचाया जाता है इन तमाम चीजों से. नाउ कीपिंग दीज क्वेश्चंस अवे and coming to our current situation of Pakistan, especially in the scenario of COVID-19, what policy do you see since the COVID entered in Pakistan and destroyed so many things here in Pakistan, both the lives
and the economy and the education and other things. So what do you think, what you see the policy of the government for the public? Now, rest of the time is for you and over to you so that you can participate. You may participate if you want to speak on mic. So you just raise your hands. I will allow you. क्या पॉलिसी आप देख रहे हैं या देखते हैं कोविड के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की क्या नजर आती है पॉलिसी? जी, I'm waiting for your response to raise your hand so that you can participate. अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो मैं आपको सिंपल नोट्स और स्लाइड दे दूंगा, तो आप घर पे पढ़ लीजिएगा. जी, हम न तारे. आई गेस कि आपका माइक जो है वो काम. सर आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है. सर गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी इख्तियार की है कि वो जो है पब्लिक को कोरोना एसओपीज के लिए फोर्स करेंगे और क्या कहते हैं उनको मतलब जो भी बुरी हैबिट्स हैं उनसे दूर रखेंगे और वैक्सीनेशन का प्रोसेस ज़्यादा करेंगे ताकि फिर जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको मतलब कोरोना के लिहाज से प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े. Okay, that's how you see the public policy for the government to the people. Yes, sir. Thank you, Amna. Your point is recorded. Okay, who else would like to say? जी खरनास. सर गवर्नमेंट ने कोरोना से रिलेटेड पॉलिसी बनाई है कि एसओपीज को फॉलो करना है हमें और हमें वैक्सीनेशन लगाना कंपलसरी है. ये सब लाइक गवर्नमेंट की तरफ से बनी हुई पॉलिसीज है जो जनरल पब्लिक को फॉलो करना मतलब. हाँ ठीक है, थैंक यू. सेम आंसर गिवन टू यू एज हमना हैज गिवन. ठीक है, शुक्रिया आपका. जी और कोई कुछ कहना चाहेगा? Okay, ji. So no more answers I have received, and Conan कह रही है the policy is not to shut the production sector and keeping people protected by providing facilities. और मेहरुनिसा कहती हैं कि लॉकडाउन if the situation of COVID becomes severe. ये मेहरुनिसा समझती हैं. मलाइका कहती हैं वर्क फ्रॉम होम. जैन कहते हैं लॉकडाउन की स्ट्रेटेजी चल रही है. ठीक है. और लॉकडाउन कोविड एसओपीज फैजान कह रहे हैं. ठीक है. और भाई ठीक है जी. तो लेट्स सी कि आपका जो पर्सपेक्टिव है वो क्या है.
आपने क्या देखा है, आपने जो जवाब दिया है वो सरफेस सतह पे पब्लिक पॉलिसी को देखकर आपने जवाब दिया जो नजर आ रहा है. इट इज नॉट वेरी सिंपल दैट व्हाट यू सी इज एक्चुअली द पब्लिक पॉलिसी. जो नजर आ रहा है वो जरूरी नहीं है कि वो पब्लिक पॉलिसी. सो यू नीड टू एक्सप्लोर एंड थिंक क्रिटिकली. लॉजिक भी पढ़ चुके हैं और हिस्ट्री ऑफ आइडियाज भी पढ़ चुके हैं. क्रिटिकल थिंकिंग और रीजंस और जो डीप थिंकिंग उसका इस्तेमाल जरूरी है. और मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि जब आप कोई जवाब दे रहे हो तो अब इस लेवल पर आके BS4 में आके, जबकि आप जो फाउंडेशनल कोर्सेज जो होने चाहिए थे वो आप पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से, जैसा कि आपके नंबर्स आपके बताते हैं, तो इससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि क्या आपके जो जवाबात हैं वो अब कॉमन सेंस पर बेस्ड ना हो, यानी कॉमन सेंस की अंडरस्टैंडिंग पर बुनियाद ना हो. किसी ने कह दिया कि भाई SOPs है, ये भी कॉमन सेंस नजर आ रहा है. इसने कह दिया कि भाई प्रोटेक्शन जो है वो चलती रहे, राइट, वगैरह वगैरह. So these are all the common sense answer. Of course, they are to some extent have some credibility, but I wish and I want that you people now think critically and from the different perspective, so that you can really come to the depth of this answer. ये मैं आपसे expect कर रहा हूँ. These are the questions that motivate many people of all ideological and political persuasion to understand public problem and find solution to them. ये क्वेश्चंस हमने देखे हैं, ऐसे और इस तरह के बेनता क्वेश्चंस हैं. ये सवालात का बुनियादी मतलब क्या होता है? इन सवालात का बुनियादी मतलब ये होता है कि ये हम या तमाम लोगों को जिनकी मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज हैं उनको मोटिवेट करें और उनको इस बात पर आमादा करें कि वो ये समझे कि पब्लिक प्रॉब्लम है क्या और कैसे पब्लिक प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस को हम हासिल करेंगे. तो ये नहीं कि सिर्फ पब्लिक पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ सवाल और जवाब और सिर्फ बात करने का एक तरीकेकार है, बल्कि पब्लिक पॉलिसी जो है वो डिपेंड करती है आपके क्वेश्चंस पर. जितने स्ट्रांग आपके क्वेश्चंस होंगे उतना ज्यादा उस पर सोचा जाएगा और उतना ज्यादा उस क्वेश्चन के जरिए जो सॉल्यूशंस है प्रॉब्लम्स के उसको ढूंढा जाएगा. जितने कम क्वेश्चंस होंगे, जितनी कम रुकावटें होंगी, उतने ही कम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे. तो इट इज नेसेसरी कि किसी भी स्टेट के अंदर जब कोई इशू क्रिएट हो तो उस पर सवाल पूछा जाए, और अगर कोई इशू क्रिएट ना भी हो तो ये गौर किया जाए कि कौन सी चीजें हैं जो कि हिडन है और जो जिसकी वजह से हम किसी प्रॉब्लम के अंदर मौजूद हैं, तो उनको ढूंढा जाए और उन पर सवाल उठाया जाए, ताकि अगर वो जेन्युइन क्वेश्चंस हैं तो हम उनके जो सॉल्यूशंस हैं उस तक पहुंच सकें. और ये काम होगा स्टेट का. सो यहाँ तक हमने बात की कुछ क्वेश्चंस की और पब्लिक की बात की. अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि पब्लिक पॉलिसी होती क्या है वेरी फॉर्मली, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पॉलिसी का मतलब क्या होता है. जैसा कि मैंने भी आपसे थोड़ी देर पहले बोला था कि पब्लिक की जो हम बात कर रहे हैं, लेकिन पॉलिसी को हम आगे डिस्कस करेंगे जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं. सो व्हाट इज अ पॉलिसी? जब भी लफ्ज पॉलिसी को आप सुने आज के बाद से, तो इस डेफिनेशन में से चीजों को एक्सट्रैक्ट करें और समझने की कोशिश करें कि स्टेटमेंट बाय द गवर्नमेंट of what is intended to do, what is planned to do. पॉलिसी का मतलब ये है वो स्टेटमेंट, वो बयान जो कि गवर्नमेंट दे, रिकॉर्ड करवाए, तहरीर करवाए, जिसका मतलब ये है कि वो उनकी क्या प्लानिंग्स हैं, वो क्या करना चाहते हैं
ٹھیک ہے، ان کے کیا ارادے ہیں، مثال کے طور پر قوانین کے حوالے سے کیا ان کی اسٹیٹمنٹ ہے، کیا ان کی پالیسی ہے، ریگولیشن کے حوالے سے کیا گورنمنٹ کی پالیسی ہے، اسٹیٹمنٹ ہے. اکثر آپ نے سنا ہوگا پالیسی بیان. ٹھیک ہے، پالیسی بیان کا مطلب ہے کہ سب اکٹھا ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں، اس کے بعد سے ایک پالیسی بیان جاری ہوتا ہے. تو a statement by government of what is intended to do, such as a law, regulation, ruling, decision, order, or a combination of these. ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا اسٹیٹمنٹ، کیا بیان دیا جائے. The lack of such statement may also be an implicit statement of policy. اگر ان کے بارے میں کوئی جواب نہیں دیا جائے، کوئی بیان نہ دیا جائے، تو وہ بھی ایک اسٹیٹمنٹ آف پالیسی کہلاتی ہے. یعنی اگر خاموشی اختیار کی جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کی پالیسی کے اس موضوع پر کوئی بات نہ کرے، تو ان کی خاموش رہنا بھی اسٹیٹمنٹ آف پالیسی کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ پالیسی کا لفظ جو ہے، جس کانٹیکس میں ہم پڑھ رہے ہیں، جس کانٹیکس میں ہم اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پالیسی کا مطلب گورنمنٹ کی طرف سے جاری کردہ بیان کسی بھی معاملے کے بارے میں. ٹھیک ہے، یہ کہلاتے پالیسی. اینی کوشچن آن دا ورڈ پالیسی؟ تو اگر ہم پبلک پالیسی کو ڈیفائن کریں، جو مختلف جو تھنکرز ہیں، لوگ ہیں، انہوں نے مختلف قسم کی ڈیفینیشن یہاں پر دی ہے، اور یہاں پہ 3-4 ڈیفینیشن آپ کے سامنے موجود ہیں. ان میں سے کسی کو بھی کمبائن کر کے آپ لکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. تو پہلی ڈیفینیشن ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ آؤٹ کم آف دا اسٹرگل ان گورنمنٹ اوور واٹ گیٹس واٹ. کس کو کیا ملتا ہے، کون کیا حاصل کرتا ہے، اس کو جاننا، یہ کیا ہے؟ پبلک پالیسی. آؤٹ کم آف دا اسٹرگل ان گورنمنٹ اوور ہو گیٹس واٹ. ٹھیک ہے، وہ نتیجہ، وہ نتائج جو گورنمنٹ اپنی اسٹرگل کے ذریعے حاصل کرتی ہے، یہ جاننے کے لیے کہ ملک میں کس کو کیا مل رہا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پبلک پالیسی. تو پبلک سے مراد یہاں پر اسٹیٹ پالیسی بھی ہم کہہ سکتے ہیں. اسٹیٹ پالیسی فار دا پیپل، فار دا پبلک. پالیسی از ناٹ اے طرز عمل. ٹھیک ہے، پالیسی از اے اسٹیٹمنٹ، بیان. طرز عمل تو بہت مختلف ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل، کوئی بیان کسی چیز پہ دے دیا جائے تو اس بیان پر عمل کرنے کے مختلف طریقہ کار ہو سکتے ہیں. لیکن یہاں پر جو لفظ پالیسی کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، وہ ایکشن کے لیے استعمال نہیں ہو رہا، بلکہ اسٹیٹمنٹ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ایک اور ڈیفینیشن ہے کہ پبلک پالیسی کو اگر ہم ڈیفائن کریں، دی ایکشن آف گورنمنٹ اینڈ دا انٹینشن دیٹ ڈیٹرمن دوز ایکشن. گورنمنٹ کے وہ تمام ایکشنز اور وہ تمام انٹینشنز یا پلانز جو ان ایکشن کو ڈیٹرمن کرتی ہے کہ بھئی یہ ایکشن صحیح ہے یا غلط ہے، یہ عمل جو ہے صحیح یا غلط ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پبلک پالیسی. اور ایک اور آسان ترین ڈیفینیشن جو آپ کو یہاں ملے گی، ان دونوں کا نچوڑ، واٹ ایور گورنمنٹ چوز ٹو ڈو اور ناٹ ٹو ڈو. یعنی حکومت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کس چیز کو منتخب کرے اور کس چیز کو منتخب نہیں کرے، کون سے عمل کو کرنے کے لیے گورنمنٹ رضامند ہو جائے اور کون سے ایکشن کو نہ کرنے کے لیے گورنمنٹ خاموش رہے.
That is the public policy. मिसाल के तौर पर बहुत सी चीजों पर गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती, तो ये उसकी पॉलिसी का हिस्सा है, और बहुत सी चीजों पर गवर्नमेंट एक्शन ले लेती। बहुत सी बातों पर गवर्नमेंट बहुत क्विक एक्शन लेती है, और बहुत सी बातों पर गवर्नमेंट या तो एक्शन नहीं लेती या बहुत स्लोली उसके बारे में प्लान करती है। डिपेंड करता है। अब जैसे कोविड के हवाले से अगर मैं आपसे यहाँ पे एग्जाम्पल शेयर करूं कि दुनिया के बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहां पर जब शुरू में उन मुल्क में 2-3 केसेस रिपोर्ट हुए तो उन्होंने मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया 15 और 14 डेज का, और उसका नतीजा ये निकला कि उस मुल्क से जो कोरोना का जो रेट है वो कम से कम हो गया। बजाय इसके कि सोचते नहीं अभी तो 2-3 लोगों को हुआ, फिर कोई मसला नहीं है, और फिर उसका वेट करते रहें। द पब्लिक पॉलिसी वाज दैट कि भाई ये जो डिजीज है इसको रोकने के लिए अगर 2-3 लोगों को ही कंट्रोल कर लिया जाए तो रेस्ट ऑफ द पीपल को, सोसाइटी को कंट्रोल कर लिया जाएगा। ठीक है। सो वी हैव सीन सो मेनी थिंग्स, सच काइंड ऑफ थिंग्स इन द कंट्री। और इसी तरह बहुत से ममालिक के अंदर दे बीन वेटिंग फॉर पीपल, कितने लोगों को हो रहा है, कैसे फैल रहा है, तमाशा देखा, और जब तमाशा कंट्रोल से बाहर हो गया तो फिर लॉकडाउन और तबाही और अमवात और डिस्ट्रक्शन और इकोनॉमिक फेलियर जैसी चीजें हमें सामने हैं। तो ये सेशन अब एक्सपायर होने वाला है, मैं विद इन अ फ्यू सेकंड दोबारा कनेक्ट हो रहा हूँ। सो डोंट गो एनीवे, प्लीज टेक द पिक्चर ऑफ दिस एंड सेंड मी टू द व्हाट्सएप। इकरा नाज अभी जो बात की है कि व्हाटएवर द गवर्नमेंट चूजेस टू डू और नॉट टू डू, तो अभी डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट के डिसीजंस क्या हैं और वो किन चीजों को अहम समझती है और किन चीजों को अहम नहीं समझती। इट्स ऑल द मैटर ऑफ देयर डिसीजन, एंड इफ इट इज so it is called as public policy. Another definition we have, एक और डेफिनेशन हमारे पास मौजूद है पब्लिक पॉलिसी की, और वो है कि पॉलिटिकल डिसीजंस फॉर इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम टू अचीव सोसाइटल गोल्स। माशरती गोल्स को हासिल करने के लिए वो पॉलिटिकल डिसीजंस जो कि गवर्नमेंट लेती हो, these such kind of decision is known as public policy. So political decision for implementing program, there are many examples of political decisions in the scenario of COVID-19, right? Where the political parties gather together and the political governing parties, यानी जो हुकूमत की इत्तेहादी पार्टीज हैं वो आपस में मिलकर बैठती हैं और फिर कोई प्रोग्राम एसेस करती हैं और उसके जरिए कोई सोसाइटल गोल्स को हासिल किया जाए। मिसाल के तौर पर तमाम ये पॉसिबल है कि एक पॉलिसी बन सकती है, बनी होगी कि जितने भी स्टेक्स हैं गवर्नमेंट के, जितने भी अलाइंसेस हैं गवर्नमेंट के, हुकूमत के, वो साथ मिलकर ये प्लान कर सकते हैं या करते हैं कि कैसे माशरे में हर इंसान को उसकी बेसिक नीड उस तक पहुंची जाए। So when they take political decisions, so they try to implement in it ताकि ऐसा ना हो कि किसी को कोई ज्यादा फेवर मिल जाए और किसी को कुछ ना मिले। Then we have another definition, as you can see, the sum of the government activities.
जितनी भी गवर्नमेंट जो भी एक्टिविटीज या एक्शंस कर रही होती है, whether acting directly or through agents, जरूरी नहीं कि तमाम एक्शन जो है वो गवर्नमेंट खुद ही ले. समटाइम्स प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के जरिए वो एक्शन किए जा रहे होते हैं. ठीक है, जैसे बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर भी फ्री ऑफ कॉस्ट कोरोना की वैक्सीनेशन लगाई जा रही है. तो ये कैसे मुमकिन हुआ? ये डेफिनेटली पब्लिक प्राइवेट जो पॉलिसी है उसके जरिए कंप्लीट हुआ. So the sum of the government activities, whether acting directly or through agent, as it has been an influence on the life of citizen. यानी ऐसी तमाम एक्टिविटीज जिसका डायरेक्ट यानी बराह रास्त ताल्लुक हो जो शहरी हैं उनकी जिंदगी के साथ, जो आवाम है उनकी जिंदगी के साथ, तो इसको हम कहते हैं पब्लिक पॉलिसी. So after studying all these different definitions, if I would like you to use your own insight and explain that what you have understood from this definition and conclude from your own point of view, so what would you say? आप क्या कहेंगे? That is what I am looking for now. So I'm opening the mic of Fatma Nasir, and I would like she would comment on what she has understood about the public policy so far. Ji Fatma Nasir, what is your point of view? क्या समझिए अब तक आप? Okay, what about Haris Ahmed? Konain Nasir. गवर्नमेंट देता है किसी भी एक चीज़ के बारे में, किसी भी टास्क के बारे में, किसी भी प्रोसेस के बारे में, और ना वो सिर्फ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं बल्कि वही ये भी बताता है कि किस तरह से वो प्रोसेस किया जाएगा या वो काम किस तरह से किया जाएगा. डिसीजंस होते हैं. इमरान खान की पब्लिक पॉलिसी या जो गवर्नमेंट ऑफ इमरान खान है वो उसको आप क्या देख रही है ओवरऑल? सर, इमरान खान की पब्लिक पॉलिसी के लिए बेसिकली जो है वो काफ़ी दूर अंदेश टाइप की है, जो बेसिकली एट द वेरी इनिशियल पॉइंट लोगों को समझ नहीं आ पाती, और उसमें काफ़ी डिसीजंस होते हैं जो कि बाद में काम आते हैं. ओके, अगर मैं ये सवाल पूछूं कि इमरान खान की जो पब्लिक पॉलिसी है वो अचीवेबल है या नहीं है, जैसे 50 लाख घर, इज दैट अचीवेबल और नॉट? यस सर, इट इज अचीवेबल. व्हाई? सर, बिकॉज द विल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, और जिस तरह से वो सब कुछ सारे जो रूल्स और रेगुलेशन है वो पॉलिसी को अपनी डिफाइन करते हैं, तो उससे लगता है कि हाँ अगर इस पे काम किया जाए तो इट इज़ अचीवेबल. ओके, एज ए पब्लिक आप यानी कोनैन नसीर एज ए पब्लिक व्हाट डू यू थिंक, आप क्या समझती हैं कि हैव यू गॉटन द बेनिफिट्स फ्रॉम सच काइंड ऑफ गवर्नमेंट पर्सनली और नॉट? आपकी लाइफ में क्या फर्क पड़ा है ओवरऑल? जी अपने पे तो मुझे डिफाइन करना नहीं आ पा रहा, लेकिन जो थोड़े और एल्डर लोग हैं उनके जैसे जो प्रोफेशनल लाइफ है उनमें काफ़ी बेहतरी आई है. जैसे मेरे जो भाई हैं उनमें काफ़ी मतलब उनकी जो भी प्रोफेशनल लाइफ है उसमें इनकी गवर्नमेंट में काफ़ी चेंजेस वगैरह आए हैं, जो पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई हैं, उनकी प्रोटेक्शन वगैरह के सीन्स हैं. तो ओके जी, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू, शुक्रिया आपका. थैंक यू सर. थैंक यू. मलाइका.
जी मलाइका. Yes, sir. The same questions that I've asked to Hunain Rashid, I have asked to you. कि सबसे पहले तो अब तक जो आपने समझा है उसको समराइज कीजिए और आपको इस वक्त करंटली पाकिस्तान की क्या पब्लिक पॉलिसी नजर आ रही है. 2 सवाल आते हैं आपसे. Okay, I think you are unable to speak. No issue. तो ये तो हमने डिस्कस की है चंद इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पब्लिक पॉलिसी की, और अब हम बात करते हैं नए टॉपिक की तरफ. वो है द नेचर ऑफ पब्लिक पॉलिसी. यानी पब्लिक पॉलिसी किस तरह होनी चाहिए, ये पब्लिक पॉलिसी का असल नेचर क्या है, हाउ पब्लिक पॉलिसी लुक्स एंड हाउ पब्लिक पॉलिसी अपीयर टू बी. तो पब्लिक पॉलिसी इसलिए बनती है, सबसे पहला पॉइंट अगर बिल्कुल लेफ्ट पे टॉप पे देखें आप, राइट पे टॉप पे देखें आप, तो जो पब्लिक पॉलिसी बनती है, पब्लिक पॉलिसी के बनने की जो सबसे पहली वजह है वो ये कि इन रिस्पॉन्स टू सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम दैट रिक्वायर अटेंशन. ऐसी चीजों पर जिस पर कभी तवज्जो ना दी गई हो, जिस पर कभी तवज्जो ना दी गई हो. फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान के तमाम सूबों में से एक सूबा जो हमेशा से डिप्राइव्ड रहा है, हमेशा से महरूम रहा है, वो है बलूचिस्तान. पाकिस्तान की 73 और 74 इयर्स की जो हिस्ट्री है, उस 73 इयर्स की हिस्ट्री के अंदर तकरीबन 70 इयर्स ऐसे रहे हैं कि जहां पर बलूचिस्तान को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया. ठीक है, एक बहुत बड़ा सूबा लैंड के हवाले से भी, रिसोर्सेज के हवाले से भी, समंदर के हवाले से भी एक बहुत बड़ा सूबा, लेकिन उसको हर दौर में हर हुकूमत के अंदर उस पर कोई स्ट्रॉन्ग पब्लिक पॉलिसी नहीं बन सकी. लिहाजा जो बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनकी जो लाइफ है उसमें जो इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए थी अब तक वो नहीं आ सकी. सो जो पब्लिक पॉलिसी है उसका बुनियादी मकसद ये है कि ऐसी तमाम बातों पर, प्रॉब्लम पर रिस्पॉन्स करना जिसको वाकई अटेंशन की जरूरत हो. सो वन ऑफ द एग्जाम्पल आई हैव शेयर्ड यू अबाउट द बलूचिस्तान, और उस पे जो गवर्नमेंट है जब उसने रिस्पॉन्स किया तो उसकी जो सूरत हाल है वो आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो रही है. नाउ यू मस्ट हैव सीन, या आपने फेसबुक पर, सोशल मीडिया पे बहुत सी खबरें सुनी होंगी गवादर के बारे में, गवादर पोर्ट के बारे में, सी पैक के बारे में, और उसके साथ साथ गवादर के क्रिकेट स्टेडियम के बारे में. ठीक है, तो लोग जो हैं वो अब पिकनिक के लिए बजाय इसके कि कराची के साहिल का रुख करें, वो बलूचिस्तान के साहिल का रुख करते हैं, जो कि डेफिनेटली कई घंटों के फासले पर है, लेकिन वहाँ की खूबसूरती, वहाँ की सफाई सुथराई और वहाँ का जो माहौल है वो लोगों को एक अट्रैक्शन देता है. और उससे यही नहीं कि सिर्फ लोगों की पर्सनल अट्रैक्शन उसमें शामिल है, बल्कि उससे जगहों की पब्लिसिटी होती है और दुनिया में जो है लोग उसके बारे में जानते हैं, और फिर टूरिज्म या इन्वेस्टमेंट और तमाम सूरत हाल के हवाले से उसमें इम्प्रूवमेंट देखी जा रही है. ठीक है जी. तो पहली चीज आपको याद रखनी है कि जो नेचर ऑफ पब्लिक पॉलिसी है वो ये है
कि रिक्वायर्स अटेंशन उन चीजों पर जिस पर कभी फोकस ना किया हो। देन पॉलिसी या पब्लिक पॉलिसी इज मेड ऑन द पब्लिक्स बिहाफ। क्योंकि पब्लिक पॉलिसी है तो पब्लिक के बिहाफ पर बनती है। अब पब्लिक के बिहाफ का मतलब है कि पब्लिक ही से बनाती है, गवर्नमेंट से बनाती है, और जिन नुमाइंदों के जरिए, लोगों के जरिए वो गवर्नमेंट हुकूमत में आई होती है, उनके लिए वो बनाती है। सो पॉलिसी इज मेड ऑन पब्लिक बिहाफ। पब्लिक की प्रॉब्लम्स को देखते हुए उनके बिहाफ पर पॉलिसी बनाई जाती है। पॉलिसी इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स अ गोल और डिजायर्ड स्टेट सच एज द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, पॉलिसी का बुनियादी मकसद ये है कि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। अ पॉलिसी इज मेड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, नॉट फॉर द लिंगरिंग ऑन द प्रॉब्लम्स। बजाय इसके कि प्रॉब्लम्स पर लड़ा जाए, उस पर टाइम जाया किया जाए। एक पब्लिक पॉलिसी, अच्छी पॉलिसी उस पॉलिसी को कहते हैं जिसका बुनियादी मकसद प्रॉब्लम को का सलूशन दिया जाए, और अगर प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाए तो उसके लिए बहुत कुछ काम किया जा सकता है। मसलन, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ द पीपल ऑफ कराची? क्या आपका ख्याल है कि कराची में रहने वालों के लिए क्या बुनियादी मसाइल हैं जिनको फौरी तौर पर सॉल्व होना चाहिए? जी मुर्तज़ा हसन, क्या आपका ख्याल है कि कराची के बुनियादी क्या इश्यूज हैं जिसको एड्रेस करना चाहिए? मुर्तज़ा हसन। और मुस्तफ़ा हसन। मुर्तज़ा और मुस्तफ़ा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मुर्तज़ा और मुस्तफ़ा, आई थिंक ये लोग प्रेजेंट नहीं है, तो इनको रिमूव कर दिया जाए फिलहाल क्लास से, क्योंकि ना कोई चैट पे कोई इनका जवाब है, ना ही किसी किस्म का कोई जवाब इनका है ऑडियो पे। जी मुस्तफ़ा हसन, आपसे सवाल किया जा रहा है, काइंडली इसको रिस्पॉन्स करें। सुभान कह रहे हैं कि डैम बनवाएं, और डैम अब तक नहीं बने हैं, और मेन इशू कराची का यह है कि कराची में डैम बनाया जाए। ठीक है जी, तो सुभान जो है वो उस तरह देखते हैं। ऑल राइट। अच्छा, अगली क्लास ये पॉलिसी होगी कि अगर कोई भी स्टूडेंट जवाब नहीं देगा चैट पर या वैसे भी, तो
तो वो फिर को मैं रिमूव कर दूंगा क्योंकि फायदा नहीं है उसके क्लास में होने का। तो बेहतर ये है कि ऑनलाइन क्लास के अंदर ये बेनिफिट उठाएं कि कम से कम पार्टिसिपेट करें। सो फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास मेक श्योर कि इफ यू आर आस्क्ड क्वेश्चन तो अपनी अवेलेबिलिटी को शो भी करें, और सिर्फ ये ऑनलाइन शो ना करें बल्कि पार्टिसिपेट करके शो करें। इफ यू डू नॉट शो योर अवेलेबिलिटी, so I will remove you from that class on that time. So from the next day, next class, it will happen. थिंग से अगर बिल्कुल करंट इशू देखें तो बिल बोर्ड साइन बोर्ड को हटाना चाहिए, दैट्स वेरी डेंजरस ड्यूरिंग। अच्छा ठीक है, ये करंट इशू है, राइट। देन पॉलिसी इज अल्टीमेटली मेड बाय द गवर्नमेंट, पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट ही बनाती है। देन पॉलिसी इज व्हाट द गवर्नमेंट चूज टू डू और नॉट टू डू। पब्लिक पॉलिसी क्या है? पब्लिक पॉलिसी है कि भाई गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एंड पॉलिसी इज इंटरप्रेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द पब्लिक एंड प्राइवेट एक्टर्स, जो कि हमने अभी इसके बारे में बात की है। सो दीज आर द नेचर ऑफ द पब्लिक पॉलिसी, इसका भी हमने जिक्र किया है। इन्फ्लेशन है, अच्छा जैन अहवाल कह रहे हैं कि भाई जो कराची का जो इशू है वो है इन्फ्लेशन, तो पूरे पाकिस्तान में नहीं है जैन अखबार। जी इकरा नाज, गो हेड। सर अब एक तो प्रॉब्लम बतानी है, वो आपने मुझसे पूछी, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं बता देती हूँ, लेकिन वो एक बात बोलनी थी। सर मैं बोलूँ? जी सर मैं आपकी बोलूँ? आवाज का इशू है। जी आप बोलिए, सर वो ना क्लास, बोलिए। सर वो क्लास जल्दी एंड हो सकती है, हर टीचर थोड़ा थोड़ा जल्दी छोड़ रहा है। आपने इतना सारा पढ़ा दिया आज पहले दिन, हम पे रहम तो नहीं आ रहा। और अभी तो चलें जी, दूसरा सेशन भी है सर, दूसरा सेशन आप थैंक यू जल्दी। वेरी मच। ठीक है जी, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाई स्टडी पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए मैंने जो कुछ भी आपको पढ़ाया है इस वक्त, वो चीजें मैंने लिंक करके पढ़ाई है, मैंने कोई ज्यादा नहीं पढ़ाया। जो भी चीजें वो एक दूसरे लिंक्ड हैं, एंड आई थिंक दैट दीज आर द वेरी सिंपल थिंग दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस टू। द लास्ट थिंग वी हैव फॉर टुडे इज व्हाई स्टडी पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, ये दो थियोरिटिकल रीजंस हैं और साइंटिफिक रीजन है जो हमें ये बताते हैं कि पब्लिक पॉलिसी क्यों पढ़ी जाए, पब्लिक पॉलिसी का मुताला क्यों किया जाए। These are the two important things we have. So read it out, theoretical reason and scientific reason, and then share. और फिर ये जरा बताइए कि आप इसे क्या समझें। तो द रेस्ट ऑफ द टाइम आपका है इन दोनों रीजंस को समझने का और मुझे समझाने का। बिलाल गजाली कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है मेजर इशू है। फाइजा किनानी कह रही है वैक्सीन सेक्टर बहुत कम और ऑर्गेनाइज भी नहीं हुए, अगर डिफरेंट इंस्टीट्यूट में भी अरेंज होता तो बेहतर काम होती। ठीक है, ओके, गुड। So these are the reasons for studying public policy, and I want you to understand these two reasons, and let's see who will explain these two reasons to me. मलाइका कह रही है कि इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, और जैन कह रहे हैं कि डंप यार्ड नहीं है कि जहाँ पे कचरा फेंका जाए। ओके, जैन अखबार कहीं भी फेंक सकते हैं, कोई इशू नहीं, ये भी कोई इशू।
देखिए जी, पब्लिक पॉलिसी पढ़ने के रीजन से जो आपके सामने मौजूद हैं, एक को हम कहते हैं थियोरेटिकल रीजन और एक जाएंगे कि हम क्यों पढ़ते हैं, उसकी क्या वजह है। तो हम थियोरेटिकली भी एक रीजन दे सकते हैं और साइंटिफिक रीजन भी दे सकते हैं। थियोरेटिकल रीजन की तरफ जो थियोरेटिकल रीजन है वो ये है कि वी स्टडी पब्लिक पॉलिसी सो दैट वन कैन नो मोर अबाउट द प्रोसेस। जब पब्लिक पॉलिसी का प्रोसेस पता चलता है कि भाई कैसे जो पब्लिक के इश्यूज हैं वो रिजॉल्व होते हैं, से पब्लिक के इशू को रेज किया जाता है और कैसे आपकी प्रॉब्लम जो रिजॉल्व प्रोसेस सीखते हैं। प्रोसेस फायदा ये होता है कि जो पब्लिक पॉलिसी है और प्रोसेस है उस पर उसके कोई काम कर रहे हैं या आप कोई इदारा चला रहे हैं तो आप उस पॉलिसी को समझते अपने इम्प्रूव कर। मसलन अगर आप कि जब पब्लिक और अप्लाइड स्टेट कैसे पब्लिक पॉलिसी को अप्लाई किया जाए और Recording stopped.